Hello students, Om Shanti. Today I am going to discuss the chemical equilibrium. In chemical equilibrium, what we have to learn, what's the main topic included in this chapter. First of all, you try to understand. First, you have to know the chemical equilibrium. Chemical equilibrium and physical equilibrium. Type of reaction on the basis of direction, reversible and irreversible process. Then I'll discuss the law of mass action. Then important terminology in this top part, that is the equilibrium state, and equilibrium constant. After that, influencing factors of equilibrium constant. And here I'll discuss the relation between Kp and Kc. Then I'll discuss the influencing factor of equilibrium constant. And last topic, in fact, this chapter divided into two parts. One, the chemical and physical equilibrium process. Under that, the equilibrium constant, equilibrium state, and Le-Chatelier's principles. Le-Chatelier's principle. And now numericals part. And the second part of this chapter, that is also known as ionic equilibrium. And under the ionic equilibrium, here you will be familiar with the acids and bases. Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept. After that, Lewis acid-base concept. Lewis acid-base concept. So in final exam, you always get the question from this part, and equilibrium state and equilibrium constant both are important terminology, and state the Chatelier's principles. Law of Le-Chatelier's principles. That is also the important terminology. Okay. After that, I'll discuss the pH scale and pH value. pH scale and pH value.
And here also important numericals part. You always get the numericals related to pH value in final exam, also important that numericals. And then the buffer solution, solubility product, and after that the hydrolysis constant. So here the solubility product and hydrolysis constant of acid base, hydrolysis of the salt, that is reduced from their portion. So only these are important terminology and very conceptual. Without adopt the concept, you can't understand and you can't deal the question related to chemical equilibrium. So just come to the point. So just here the boundary line, what important terminology and what topic to be discussed in this chapter. So just I have written. Now come to the main point. So first of all, you know the chemical reaction classified in different way. In 10th class, you know the type of chemical reaction: single displacement, double displacement, decomposition reaction. And again under decomposition, the electrolytic decomposition, photolytic decomposition, thermal decomposition, and further the reaction classified as the oxidation reaction and reduction reaction. And in thermodynamics, on the basis of heat energy released or absorbed, the reaction classified as exothermic and endothermic. Even in organic chemistry, the reaction classified in the various way. So any type chemical reaction, here we are going to classify the reaction on the basis of direction. There are some chemical process or physical process occurs only from one direction, from left to right, and some other various process, either physical or chemical, that occurs in both sides. So on the basis of direction, the reaction classified as the reversible process, or you can say reversible reaction, and second, that is the irreversible reaction. So reversible reaction is that reaction which occurs in from both sides. That means the reactant combined together gives the product, and product also combined together and convert into the reactant. So that type process is known as the reversible process. So that reversible process may be chemical reversible or physical reversible. So that process only due to the changing the physical state and occurs from both sides, from both directions, that is known as the physical reversible process. For example, here the ice solid H2O that change into the liquid water. So at 0 degrees Celsius, what happens? The some amount of the solid water change into the liquid, then and then that the water molecule again freeze into the solid. So from both sides that process always occurs, but this process occurs only here the physically change, no chemical change, only physical state change. So such type process is known as the physical reversible reaction. But if the reactant combines and gives the product, means chemically change, and that occurs in both sides, that is known as the chemical reversible reaction. So for that purpose, you take example hydrogen and iodine that react together and give the hydrogen iodide. So when hydrogen and iodine treated together, you will get the HI. And in reverse way,
if you take the HI and just you heat, so on heating hydrogen iodide that convert into hydrogen and iodine. So this reaction always occurs in both sides. So that reaction which comes under the reversible reaction, reversible process, for that reaction here double arrow sign is shown. That is the indication for the reversible process. And another example, decomposition of PCl5 that decompose into PCl3 and Cl2. So that decompose into phosphorus trichloride and chlorine. And again, if PCl3 treated with the chlorine convert into the PCl5. And now you take one more examples, decomposition of ammonia NH3 or formation of ammonia, you can write here nitrogen and hydrogen combined together gives the ammonia. Okay, so 3 you can write here hydrogen, 1 part nitrogen, 3 part hydrogen, and gives the ammonia. And when ammonia heated, that decompose into the nitrogen and hydrogen. So these are example the chemical reversible process. One example here the physical reversible process. So in reversible process, the any process either physically change or chemically change that occurs from both sides. So for that purpose, student, you must know some example that comes under the reversible process. And whenever you study the chemistry and whenever you go to the reaction and chemical equation, just you watch the double arrow sign given, you must know that comes under the reversible process. And if single arrow sign is given, that comes under the irreversible reaction. So under irreversible reaction, just you take the decomposition of the potassium chlorate. When potassium chlorate heated in presence of manganese dioxide catalyst, that one decompose into the potassium chloride and oxygen gas. Followed? So ये पोटेशियम क्लोराइड टूट करके पोटेशियम क्लोराइड टूट करके पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन बनाएगा, लेकिन रिवर्स इज नॉट पॉसिबल. आप यदि आप पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, यू treated that together in any condition, that one will not react and that will not produce the potassium chloride. रिवर्स संभव नहीं है, एक ही डायरेक्शन में आएगा. तो इसको हम लोग यूनि डायरेक्शनल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में होगा. रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट विल नॉट चेंज इनटू द रिएक्टेंट. दैट प्रोडक्ट विल नॉट रीजनरेट इनटू द रिएक्टेंट. फॉलो? सो देयर आर वेरियस केमिकल रिएक्शन व्हिच कम्स अंडर द रिवर्सिबल रिएक्शन. जैसे आप यहाँ हाइड्रोजन आयोडीन लिए हैं, लेकिन आप जब हाइड्रोजन और क्लोरीन लेंगे तो आपको ये बनेगा HCl, बट दैट वन नॉट द रिवर्सिबल रिएक्शन. ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है. ये सनलाइट के प्रेजेंस में आपको हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइन करेगा और आपको HCl बनाएगा. तो यहाँ भी देखो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड रिवर्सिबल है, लेकिन आपको फॉर्मेशन ऑफ HCl इरिवर्सिबल रिएक्शन है. लेकिन आप डिकम्पोजिशन में ही देखिए, आप यदि कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, दैट कम्स अंडर द रिवर्सिबल रिएक्शन. दैट वन डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ये दोनों कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट भी बनाता है. सो इन दिस वे स्टूडेंट, यू मस्ट नो सम एग्जांपल्स दैट कम्स अंडर द रिवर्सिबल रिएक्शन. सो in this chapter in chemical equilibrium, whatever we will discuss that related to the रिवर्सिबल प्रोसेस. तो अब आगे जितना भी टॉपिक कंटेंट आप लिखे थे वो सारे सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है. यानी रिवर्सिबल प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगा, उसको आपको जानना है. तो बेसिक कंसेप्ट के लिए आपको पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको जानना होगा. तो अभी आपको जस्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है, अब रिएक्शन रेट को जानना है आपको. अनदर आपको पॉइंट जो है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में, रिवर्सिबल में जो दो पार्ट आया फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस में. तो फिजिकल प्रोसेस में सिर्फ फिजिकली चेंज होता है. केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपको रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का आपको दोनों का अलग अलग होता है. ठीक है, तो रेट ऑफ जो चेंजिंग है वो दोनों तरफ सेम होगा, तब वो रिवर्सिबल आएगा वो.
तो हम लोग अभी रिएक्शन का रेट जानने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट वन ऑलवेज एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अभी आपको आगे जानने के लिए बहुत सा केस में आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ये पहले जान लेना है, तब फिर हमको आगे समझने में सुविधा होगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जब तक आप रिएक्शन को एक्सप्रेस करने नहीं आता है तब तक वो आपको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उसको समझाने से पहले नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। गुलबर्ग एंड वागे ये दो साइंटिस्ट था, दोनों मिलके यह स्टेटमेंट दिया है, दोनों वर्क किया है इससे रिलेटेड। गुलबर्ग एंड वागे बोथ साइंटिस्ट gave the statement related to rate of reaction and the concentration of reactant। ठीक है, तो पहले तो आपको इसको समझने के लिए कुछ और टर्मिनोलॉजी जानना होगा, तो आप छोटा छोटा टर्म जो बेसिक चीज है उसको जानना है। कंसंट्रेशन मतलब क्या हो गया, और कंसंट्रेशन जान गया तो रेट ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या हो गया, फिर आप समझेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले तो इसको दोनों का समझना होगा, तब फिर आप रेट ऑफ रिएक्शन में आएंगे। जब ये आप समझ जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट जो है आपको इसी लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पे ही लिखते हैं। तो कंसंट्रेशन आप जो फर्स्ट चैप्टर में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पढ़े हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में बी एक्सप्रेस एज ए मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मलिटी। तो कंसंट्रेशन एक जनरल टर्म है और उसको कंसंट्रेशन को आइदर यू एक्सप्रेस इन मोलरिटी और यू एक्सप्रेस इन नॉर्मलिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन। ये आपको डिफरेंट मोड्स है सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए। तो कंसंट्रेशन इज ए जनरल टर्म, इसका मतलब है इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इन 1 लीटर सॉल्वेंट। 1 लीटर सॉल्वेंट में आपको कितना नंबर ऑफ मोल है, तो आपको उसको हम एज ए मोलिटी में भी एक्सप्रेस करते हैं। छोटा छोटा टर्म को पहले क्लियर कीजिए, तब लॉ ऑफ मास एक्शन को आएंगे। तो जैसे आपका कंसंट्रेशन जो होगा किसी भी रिएक्टेंट का होगा, मान लो ए है रिएक्टेंट, उसको ग्रेटर टर्म आप लगा देंगे तो उसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है, इसको समझना है। यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ए प्रेजेंट इन 1 लीटर, दैट इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट। कहीं कहीं आपको बुक में सी लिख के ए लिखा हुआ, मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ए। तो कंसंट्रेशन मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इन 1 लीटर सॉल्वेंट या 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ। अब क्या है, ये नेक्स्ट टर्म है रेट ऑफ सब्सटेंस या रेट ऑफ रिएक्टेंट, ये भी आप लिख सकते हैं, रेट ऑफ सब्सटेंस। तो रेट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में मतलब क्या हो गया, तो आप जैसे किसी बाजार जाते हैं तो कोई सामान खरीदने जाते हैं तो रेट पूछते हैं, कि जैसे आप सब्जी ही खरीदने गए हैं तो आपको आलू का रेट क्या है, तो वो बोलता है ना कि आपका 40 रुपीज पर केजी, मतलब 1 केजी में आपको 40 रुपीज लगेगा। फिर कोई व्हीकल्स है, आपको उसका आप स्पीड जानना चाहते हैं कि इसका स्पीड क्या है, माइलेज क्या है, ये सब चर्चा करते हैं। तो आपका मान लीजिए कोई व्हीकल्स का अब लिखा हुआ है 20 किलोमीटर पर मिनट, कहने का मतलब 1 मिनट में 20 किलोमीटर या किलोमीटर आवर हो गया, मान लो 1 आवर में 20 किलोमीटर जाता है, तो वो उस व्हीकल का आपका स्पीड हो गया। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में सब्सटेंस का रेट मतलब क्या है, यहाँ भी रेट वर्ड है। तो एक्चुअली क्या है, ये चेंजिंग रेट जो है हमेशा चेंजिंग होता है,
और पर यूनिट में उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई रिएक्टेंट कंबाइन करता है तो उसमें कंसंट्रेशन में चेंजिंग आता है। सब रिएक्टेंट क्या होता है, फास्ट रिएक्ट करता है, मतलब यूनिट टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बना देगा। कुछ ऐसे सब्सटेंस से बहुत स्लोली चेंज होगा, आपको यूनिट टाइम में आपको बहुत थोड़ा सा चेंज होगा। और कुछ जो सब्सटेंस है मॉडरेटली, मतलब यूनिट टाइम में आपको बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा तो बहुत कम भी नहीं, उसको मॉडरेट रेट बोलते हैं। बहुत एक्सट्रीमली फास्ट, एक्सट्रीमली स्लो और बहुत सारा रिएक्शन मॉडरेटली होता है। तो कहने का मतलब है कि यूनिट टाइम में कोई भी रिएक्टेंट कितना कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, चेंज होना क्या चेंज करता है, एक सर्टेन नंबर ऑफ मोल आपको दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जा रहा है, तो यूनिट टाइम में कितना नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहा है, वही उसका रेट ऑफ सब्सटेंस हुआ। कोई थोड़ा ज्यादा चेंज करता है तो हम बोलेंगे उस सब्सटेंस का रेट ज्यादा है, किसी का कम होता है तो उसका हम बोलेंगे उसका रेट ऑफ रिएक्टेंट जो है उसका कम है। तो रेट ऑफ सब्सटेंस करने का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम। तो इसको नोट कर लीजिए, चेंज इन कंसंट्रेशन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ सब्सटेंस। Change in concentration in unit time is called change in concentration in unit time is called rate of substance। ठीक है, अब इसको समझना है, मैथमेटिकल कंसेप्ट की ओर ले जा रहे हैं। तो अब सपोज मान लो कोई रिएक्टेंट ए है, आपको इनिशियली x1 कंसंट्रेशन है उसका, और आपको dt टाइम में आपका उसका कंसंट्रेशन चेंज होगा, चूंकि रिएक्टेंट ए जो है आपको टूट करके B बन रहा है, तो ये टूटा सर्टेन नंबर मोल है, आपको B में कन्वर्ट हुआ कुछ, तो अब इसका सर्टेन नंबर ऑफ मोल आपका चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चला गया, तो नंबर ऑफ मोल कम हो गया, तो आपको dt टाइम इंटरवल में मान लो इसका कंसंट्रेशन x2 हो गया। तो dt टाइम में इसका कंसंट्रेशन में नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर, तो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल जहां चेंज होगा तो कंसंट्रेशन भी चेंज होगा। तो आपको dt टाइम में इसका कंसंट्रेशन आपको दिखा रहा है x2, तो आप क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो आप उसमें क्या लिखेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। अब आपसे हम पूछेंगे x2 ग्रेटर है कि x1 ग्रेटर है। अब ये कंसेप्ट अब यहां से शुरू हो जाता है आपका समझना, यहां से समझना है। तो x2 आपका कंसंट्रेशन कम है और x1 ज्यादा है, क्योंकि x1 जो इनिशियल कंसंट्रेशन है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल था, अब dt टाइम में सर्टेन नंबर ऑफ मोल टूट के आपको प्रोडक्ट में चला गया, तो उसमें तो नंबर ऑफ मोल घट गया, तो नंबर ऑफ मोल घटा तो कंसंट्रेशन घटा, तो x1 आपको कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो x2 लेसर देन x1 है, यानी ग्रेटर टर्म के आगे माइनस है, इसलिए जब आप माइनस प्लस करेंगे माइनस होगा, लेकिन साइन अकॉर्डिंग टू ग्रेटर टर्म। और यहां पर मान लो कुछ इसमें डिफरेंस जो आया वो मान लो dx आया और यहाँ एक नेगेटिव साइन दे दिया। अब वहां था आपका रेट ऑफ सब्सटेंस में डेफिनेशन क्या लिखा था, रेट ऑफ सब्सटेंस में अभी आप जस्ट लिखे थे चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम, तो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है आपको माइनस dx, और कितना ये चेंज हुआ है इस dt टाइम इंटरवल में, तो dt टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया तो यूनिट टाइम में निकल गया, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम, तो dt टाइम से डिवाइड किया तो ये हुआ आपका रेट ऑफ सब्सटेंस A का माइनस dx बाय dt। अब इसका यूनिट क्या हो गया, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर और डिवाइडेड बाय टाइम हुआ, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर पर टाइम हो गया, मोल पर लीटर पर टाइम आपका रेट ऑफ सब्सटेंस का हो गया। अब यहां समझने का चीज है, एक मैं रिएक्शन लेता हूं, नॉन रिएक्शन ले रहा हूं, मैथमेटिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन को रिएक्ट किया तो अमोनिया बना, बैलेंस किया तो ये 3 हुआ, यहां पर 3:1:2 रेशो में हो रहा है,
जब ये 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो ये 1 ही मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, मिलके 2 मोल अमोनिया बनाया। 3:1 रेशियो में रिएक्शन हो रहा है। एनी केमिकल रिएक्शन अकर्स इन ए सर्टेन रेशियो, यू ऑलवेज रिमेंबर इट। तो ये 3:1 रेशियो में कंबाइन कर रहा है। तो अब यहां समझना है रेट ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ नाइट्रोजन का बात ले रहे हैं। तो देखो एट ए टाइम जब 3 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होता है तो एट उतना टाइम में ये 1 ही मोल कंज्यूम हो रहा है। तो यूनिट टाइम में जिसका जितना ज्यादा मोल कंज्यूम हो रहा है या कन्वर्ट हो रहा है अदर में, उसका रेट उतना ही फास्ट है। तो एट ए टाइम 3 मोल कंज्यूम हो रहा है ये 1, तो नाइट्रोजन से रेट इसका हाइड्रोजन का ज्यादा है। तो रेट ऑफ हाइड्रोजन जो लिखेगा वो आपका अलग वैल्यू आ जाएगा, जिसको -dx/dt करेंगे, और इधर रेट ऑफ नाइट्रोजन। तो ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्टेंट का रेट आपका कुछ है, इस रिएक्टेंट का रेट कुछ है, लेकिन एज ए ओवरऑल हमको रिएक्शन का रेट लिखना है कि इस रिएक्शन का रेट क्या है। पर्टिकुलर रिएक्टेंट का तो मैं बताया, रेट ऑफ सब्सटेंस मींस चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम। बट व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का रेट क्या है, तब आप कैसे लिखेंगे। जैसे आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े होंगे कि जब गैसेस मॉलिक्यूल ऑलवेज रिमेन इन रैंडम मोशन, तो सम गैसेस मॉलिक्यूल moves extremely fast while some gaseous molecule moves extremely slow, but most of gaseous molecule moves in moderate way। लेकिन जब आंधी तूफान चलता है तो आप उसका रेट स्पीड आंधी का क्या बोलते हैं, 20 माइल पर आवर, मतलब 1 आवर में 20 माइल ऐसे गैसेस सब्सटेंस फ्लो हो रहा है इतना तेजी से। अब वहां तो गैसेस मॉलिक्यूल सबका वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन आप यहां जब एक्सप्रेस करते हो गैसेस सब्सटेंस के लिए रेट आप लिखते हो स्पीड, वेलोसिटी ऑफ गैस लिखते हो, वेलोसिटी ऑफ आपको तूफान का लिखते हो, तो आप एक नंबर में लिखते हो, जबकि गैसेस सबका अलग है। तो वो हायर क्लास में पढ़ेगा आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गैसेस मैटर। अभी तो ये 11th के बियॉन्ड है कंसेप्ट। तो उसी तरह यहाँ केमिस्ट्री में देख रहे हो कि हर रिएक्टेंट का रेट अलग अलग है, लेकिन हम इस रिएक्शन का रेट हम एक नंबर में एक्सप्रेस करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसी को जानने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन आया है। तो आपको गुलबर्ग एंड वागे ने आपका एक रिलेशन दिया कंसंट्रेशन और रेट ऑफ सब्सटेंस या रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। तो जो स्टेटमेंट दिया उसी को हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। अंडरस्टूड। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हम लॉ ऑफ मास एक्शन किस संदर्भ में पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम क्या जानकारी हासिल करेंगे। तो जब लॉ ऑफ मास एक्शन समझ जाएंगे, रिएक्शन का रेट लिखने आ गया, तो फिर आगे आपको समझने में सुविधा होगा और उसकी जरूरत भी पड़ेगा। और ये लॉ ऑफ मास एक्शन अभी तो आप 11th में पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसकी जरूरत आपको 12th में केमिकल काइनेटिक फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें इसकी जरूरत पड़ता है। तो वो इसको बगैर समझे वहां भी आपको समझना मुश्किल होगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन 12th में भी आपको अभी नहीं समझेंगे तो वहां भी आपको आवश्यकता पड़ेगा समझने के लिए, नहीं तो केमिकल काइनेटिक्स आपको समझ में नहीं आएगी। एनीवे, अब हम लिखने जा रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आप लिख सकते हैं कि गुलबर्ग एंड वागे गेव ए क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन concentration of reactant and rate of substance, that is known as law of mass action। और उन्होंने स्टेटमेंट क्या था, इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या स्टेटमेंट दिया, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो आज हम लॉ लिखा दे रहा हूं और नेक्स्ट आपको समझा के फिर उसको आगे मैथमेटिकल कंसेप्ट में जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यहां पर लिख लीजिए, द रेट एट विच it reacts is directly proportional to its active mass। एक नया वर्ड आया, एक्टिव मास। एक्टिव मास नथिंग बट इट इज कंसंट्रेशन। आगे चल के बताएंगे, थोड़ा सा फर्क है टर्म में। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब ही अभी समझ लेना है एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब कि आपको नंबर ऑफ मोल, दैट इज लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स
पर लीटर, वही है उसका आपका कंसंट्रेशन, वही है एक्टिव मास। किसी भी रिएक्टेंट में आप ग्रेटर ब्रेक लगा दिए तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए अब आप बोल सकते हैं। यहाँ ये वर्ड का मतलब यही है, द रेट एट विच इट रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। दो पार्ट में है स्टेटमेंट, एक रिएक्टेंट के लिए और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reactant, and rate of reaction is directly proportional to product of active masses of reactant, and power raised over it equal to its stoichiometric कोएफिशिएंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसका मतलब समझाएंगे। अभी आप स्टेटमेंट में लिखा दिया हूं। नाउ थैंक यू फॉर द लिसनिंग।